हाँ, एनीवेज चलो खैर। अच्छा, आप लोग की क्लासेस जो है वो 17 मार्च तक हैं, तो हम लोगों को तब तक अपने सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप करेंगे चीजों को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था द केस ऑफ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। देन just quickly review what were the facts of the case and the provisions which we discussed in our last class. So basically that is something which is related with the termination of two subordinate judges. And what is their main plea? Their main plea is, here in this case, the governor of the state who has exercised his power under article 311, the term used is, मैं उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 प्रोविजो सी, which says that the governor or the president will exercise their personal satisfaction, or the term used is satisfaction. So in that class we have discussed that there it is clearly mentioned that while taking any kind of action against the civil servant, the decision or the satisfaction of the governor should be their personal satisfaction. So what is the main contention of the petitioner in this case? The main contention of the petitioners in this case is, the main contention is, here the governor has not exercised his satisfaction personally, but he has taken the decision on the basis of the advice of the council of minister. And because the constitution says that he should exercise his satisfaction, so ideally the decision of the governor, which is basically taken on the basis of the recommendation of the council of minister and not his personal satisfaction, that is unconstitutional. तो यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि under article 311 you can see that basically this is something which is the part of the हायरार्की का मतलब क्या होता है उसको भी मैंने उस दिन आपसे बताया था. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड आर्टिकल 77 एंड आर्टिकल 166. 77 में फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, हाउ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डेलीगेट इट्स पावर to the council of minister and other person. And similarly under article 166 we have seen the same thing in the case of president also. तो मैंने आपको बताया था कि there is one thing which is absolutely clear and you should not get confused about that. The first one is, whenever the president and governor are going to exercise their executive power, they are bound by the advice of the council of ministers. But whenever they are going to exercise their constitutional power, they will exercise their constitutional power on their own, and the constitutional पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर. उसका डेलीगेशन नहीं हो सकता. तो जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करेंगे वहां पे पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते, और जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे दे आर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द council of minister. Now the another important question is how we will identify that the role which is going to be performed by them, they are performing those duties in the capacity of the executive head or in the capacity of the constitutional head, because as of now it is very much clear that the constitutional power cannot be delegated further while the executive power can be डेलीगेटेड. तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं. एक केस मैंने आपको बताया था which has been discussed in this case, and the petitioner are trying to take the benefit of this judgment in their favor, and the name of the case is Sardari Lal versus Union of India. So in the case of Sardari Lal versus Union of India, 1971 3 SCR 461, it was decided by the Supreme Court that under Article 311 subclause 2 proviso C, the meaning of satisfaction of president and the satisfaction of governor means their personal satisfaction. And personal satisfaction का मतलब ये हुआ, according to this judgment, they should take their decision on their own and not on the advice of the council of minister, or they are not bound by the advice of the council of minister. So that was the decision which was given in the case of Sardari Lal. लेकिन सरदारी लाल के केस में डिसीजन दिया गया, चलो ये तो ठीक बात है. यहाँ पे हमें क्या देखना है, the most important thing which we have to check here,
is whether the power which is going to be exercised by the president and the governor, that is the executive power or that is the constitutional power. तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज एन आर्टिकल एंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल इज आर्टिकल 361. So what basically Article 361 is going to do, it is going to provide a level of immunity to the president and the governor for their action, for their decisions which are going to be taken in their name, but actually they are not their decisions. तो इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अंडर आर्टिकल 361 that there is an immunity which is available to the president as well as to the governor for their personal decisions. तो इसीलिए आप किसी भी केस में अगर देखते हो तो आपको क्या मिलता है कि in any case which has been filed against the state before the Supreme Court or the High Court, one party would be the state and not the president or the governor. जैसे यूनियन ऑफ इंडिया होगा, स्टेट ऑफ यूपी होगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वर्सेस गवर्नर ऑफ द स्टेट हो या वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ऐसा नहीं होता. तो ये जो इम्यूनिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 361 टू द प्रेसिडेंट एंड टू द गवर्नर, one of the very important reason is the decision which is actually taken in their name, they are not their own decision but they are the decisions of the council of ministers. वो council of minister के decision है. एक reason तो ये है, और दूसरा reason ये होता है कि they should not be dragged in any kind of litigation unnecessarily. They should not be, क्योंकि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चलती है, सपोज वंस गवर्नर तो हालांकि इसका हिस्सा होते हैं, बट सपोज इफ एवरी डे सम पिटिशन इज गोइंग टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट or the governor, they are the highest constitutional positions in the center as well as in the state, so their position should also be respected. And besides that, we have discussed earlier also that the decisions are basically taken in their name but the decisions are actually not their own decision. तो इसी तरीके से जब आप देखते हो 361 के साथ साथ आर्टिकल 300 में, तो आर्टिकल 300 says the state the proceedings may be initiated against the government of India of a state but not against the governor or president. और ऐसे जब आप 300 देखते हो तो उसमें आपने देखा है कि स्टेट में sue और स्टेट में बी sued. तो स्टेट में sue और स्टेट में बी sued का मतलब क्या होता है? The state can also file a petition. A petition can be filed against the state. But ultimately, in both the circumstances, neither we are using the term president nor we are using the term the governor of the state. तो इसका मतलब जहां जहां पे ये जो केसेस आते हैं वहां पे ये चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं कि once they are going to work as the executive head, then in those circumstances, basically they are performing executive function and they cannot be held liable for that because the decision which has been taken by them under these circumstances are the decisions of the council of ministers. अब यहाँ पे एक important चीज और है जो कि अगर आपके पास केस मटेरियल हो तो आप देखिएगा, and that is para number 30 of this judgment. That is very much important. Here the Supreme Court has mentioned certain things. They are talking about certain provisions where the term satisfaction is being used. So wherever in the constitution term satisfaction has been used, the biggest question in this judgment is how we will define those satisfactions. Are those satisfactions are the personal satisfaction, or in all those cases the decision should be taken on the basis of the advice of the council of ministers. तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, इसको देखिएगा आप. Para 30, in all cases in which the president or the governor exercises his functions conferred on him by or under the constitution with the aid and advice of his council of ministers, he does so by making rules for convenient transaction of business of the government of India or the government of the state respectively, or by allocation among his ministers of the said business in accordance with Article 77 subclause 3 and 166 subclause 3 respectively. इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली these provisions are going to talk about the delegation of executive power. फिर ये क्या कहते हैं
wherever the constitution requires the satisfaction of the president or the governor for the exercise of any power or function by the president or the governor as the case may be, as for example, कहाँ पे term use है satisfaction of president or satisfaction of governor, कहाँ पे use है? Article 123 means the ordinance issuing power of president. Article 213 the ordinance issuing power of governor. Article 311 subclause 2 proviso C जिसको कि हम लोग देख चुके हैं, which is basically related with the civil servants. Article 352 subclause 1, 356, 366, all these are basically related with emergency provision. The satisfaction required by the constitution. अब यहाँ पे in all these places the term used is the satisfaction, but यहाँ पे काफी सारी चीजें जो पहले decide हो चुकी हैं, वहां पे क्या decide किया गया है कि at all these places the satisfaction required by the constitution is not the personal satisfaction of the president or the governor, but is the satisfaction of the council of ministers. ये कैबिनेट का satisfaction होगा, ये प्रेसिडेंट का satisfaction नहीं होगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि सिंपल सी बात यहाँ पे आप कंक्लूड आप यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं. पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के बैकग्राउंड में द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर गोइंग टू एक्सरसाइज देयर पावर. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेदर दैट पावर कैन बी डेलीगेटेड और नॉट. These two things are very very important. तो यहाँ पे अभी मैंने आपको एक केस बताया था सरदारी लाल का, यहाँ दो केस और है. एक केस है आपका मोतीराम डेका का, जहां पे डिसाइड किया गया था कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन नॉट डेलीगेट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू एनीबडी एल्स, एंड द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, they both, wherever the term used satisfaction, they will exercise their personal satisfaction or their personal discretion. लेकिन और इसी के साथ एक और केस है बाबूराम उपाध्याय, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली. उन्होंने बोला कि 311 सब क्लॉज 2C में the satisfaction of the governor means their personal satisfaction, because here they are not exercising their executive power, but they are exercising their constitutional power. The constitutional power cannot be delegated, so they will have to exercise their power under Article 311 personally and not on the aid and advice of the Council of Ministers. लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, और वो क्या है? The important thing is, because we have all discussed that here we follow the idea of parliamentary democracy. तो parliamentary democracy में एक बड़ी important चीज होती है कि either it is a president or the governor, they should not be kept above the democratically elected government. Obviously, they are the constitutional head and they are the executive heads also. So they should interfere in the functioning of the elected government in an exceptional circumstances. So exceptional circumstances cannot always be presumed. But yes, one point is very much important. That is the power of the delegation, which can be a criteria to decide that whether the power which has been exercised by the president or the governor, that is their executive power or that is their constitutional power. तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, we were discussing the pyramidal structure of power of the state. और मैंने उसमें आपको बताया था कि जब आप सिविल सर्वेंट्स को भी देखते हो तो एक हायरार्की ऑफ द सिस्टम होता है, जिसमें आपने देखा हम लोगों ने काफी सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. तो हायरार्की ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे एक लेवल है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, टॉप पे कोई और है. सो सपोज द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टॉप, दैट इज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. डिपेंड करता है कि हम वी आर गोइंग टू कंसीडर अ स्टेट यूनिट और द यूनियन ऑफ इंडिया. जो व्यक्ति बॉटम पे है, मान लो उससे थर्ड लेवल पे जो व्यक्ति है ऊपर की तरफ, वो उसको अपॉइंट कर रहा है. देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311 ओनली द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी अबव above the appointing, only they are allowed to remove that person
who is working as a civil servant in any setup. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी या तो वो रिमूव कर सकती है, एक्शन ले सकती है, और एनी अथॉरिटी हु इज सुपीरियर टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बट नॉट द इंफीरियर अथॉरिटी. तो इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि इन दिस पर्टिकुलर सेटअप where we are talking about the civil servants, there is a hierarchy of system. और हायरार्की ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि देयर इज ऑल्सो अ डेलीगेशन ऑफ पावर. और डेलीगेशन ऑफ पावर कैसी है? क्योंकि हमने बता दिया कि अपॉइंटिंग या उससे ऊपर की अथॉरिटी रिमूव कर सकती है या एक्शन ले सकती है. तो इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि हियर इन दिस केस वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स. एंड डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, it means it is permissible under article 311. And wherever, I told you earlier also that wherever there is a provision of delegation of power, or the power can be delegated by the president or the governor, in all those cases they are basically exercising their executive function. And whenever they are exercising their executive function, they are not bound by the advice of the council of council of ministers, and they cannot take their own decisions. तो यहाँ पे क्या है? On the basis of the delegation of power, it is very much clear that the governor is exercising his executive power, so he is bound by the advice of the council of ministers. So here in this case, the Supreme Court has dismissed the petition of the petitioner on this basis that the governor is exercising his executive power, so the decision which has been taken by him on the advice of the council of minister, that is constitutionally valid. So that is the case of जो मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसको कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, शमशेर सिंह का वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का. एंड आई थिंक नाउ द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू वेयर एवर इज द डेलीगेशन ऑफ पावर. और उसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी हम एक सेटअप की बात करते हैं, स्पेशली एक डोमेन, ऑफिस डोमेन की बात करते हैं, तो वहां पे द पावर विच इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, दैट इज देयर एग्जीक्यूटिव पावर. लेकिन अभी हम इसका कॉन्ट्रास्ट भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा ये बात एकदम सही है कि द गवर्नर इज एक्सरसाइजिंग हिज एग्जीक्यूटिव पावर. और इसलिए एक चीज देखिएगा, जब भी कोई डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उठता है, देन इन ऑल दोस सर्कमस्टेंसेस वन पार्टी इज द स्टेट. एंड स्टेट जहां पे पार्टी होती है वहां पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग आइदर अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव और अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो आप देखिए जितने भी एम्प्लॉयमेंट के केसेस होते हैं, किसी का सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, या जॉब कर रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, इन ऑल दोस केसेस वन पार्टी इज द स्टेट. क्योंकि यहाँ पे जो मशीनरी है वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ऑल दीज ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दीज जुडिशरी, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस. सो बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ वे. तो क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस वगैरह जो भी होता है उसमें गवर्नर का क्या रोल होता है, वो हम लोगों ने आर्टिकल 234 में देखा है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि दे आर एक्सरसाइजिंग देयर एग्जीक्यूटिव function. So Asif, you want to ask any question? Yes, ma'am. In this case, term that has been laid a great emphasis upon is the term section of the governor, which has been interpreted the satisfaction of the governor is nothing but the satisfaction of council of ministers. But the term that has remained unnoticed was the term subordinate. Subordinate term is, ma'am, indicative enough that subordinate, in case he wishes to take one action, so the reference should be to the governor, who is in fact superior to this subordinate officer. And the appellate in this case was dismissed from his services without any reference to the governor. So where and when that was rendered, and if such arbitrary decisions are taken by the ministers, so wouldn't it undermine the supremacy of judiciary and as well as the constitutional post of and the dignity of his post?
Okay, so you are basically trying to say that the governor is the superior most authority. So here the satisfaction of the governor should be his personal satisfaction. यही बोल रहे हो ना? The term subordinate should have been taken into consideration. नहीं तो सबऑर्डिनेट देखो इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने इंटरप्रिटेशन यही तो किया है ना कि इन एनी हायरार्किकल, तुम्हारा जो सवाल है उसका मैं पूरा जवाब नेक्स्ट केस डिस्कस करने के बाद दूंगी, लेकिन पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनी हायरार्किकल सिस्टम, so it is not like that in any setup every decision against an any employee is going to be taken by the governor. Governor is on the top obviously because all the executive actions are going to be taken in the name of the governor. लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम हायरार्किकल सिस्टम में देखते हैं कि ऑफिसेज में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है उसको, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, आपका जो चांसलर है यहाँ का वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का हेड है वो आपका वाइस चांसलर होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी बिकेम द गवर्नर, सॉरी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज द चांसलर, बट हियर ऑल द डिसीजंस आर गोइंग टू बी टेकन बाय द वाइस चांसलर. तो इसका मतलब क्या है, द चांसलर हैज डेलीगेटेड हिज पावर टू द वाइस चांसलर टू टेक द एक्शन और टू टेक द डिसीजन ऑन हिज बिहाफ. समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द चांसलर टू द वाइस चांसलर. Similar thing happened in every setup, including the setup of the judiciary. तो यहाँ पे एक जो चीज अभी तक निकल के आई है, which is very clear and there is no doubt about that, if any power can be delegated, that power is only executive power, but because the constitutional power cannot be delegated to anybody else. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का सेटअप है, वो चाहे मैंने डीयू का एग्जांपल दिया हो आपको या चाहे मैं अभी जुडिशरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इन ऑल दोस केसेस द पावर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर इज अलाउड. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर द डेलीगेशन ऑफ पावर इज अलाउड इट मींस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब ये हो गया कि हियर इन सच टाइप ऑफ केसेस द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज बाउंड by the advice of the council of minister. लेकिन एक चीज जो आसिफ तुम्हारी बात है उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी कि there is nothing which could be called as permanent in law. So most of the time the interpretation depends upon the facts and circumstances of the cases. अभी मैं एक दूसरा केस डिस्कस करूंगी, then I think the things are going to be more clear to all of you, and the name of the case is MP स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट. ये जो आपका केस है वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2004 8 SCC 788 SN वरियावा का जो है जजमेंट है, एंड इट इज एन एक्सीलेंट जजमेंट. तो पहले मैं जरा सवाल ले लूं. हाँ शिवम पूछो. आसिफ समझ में आ गया जो मैंने कहा अभी? Yes, ma'am. Yes. है ना? हाँ शिवम. Ma'am, there is in exercise of discretionary power, the governor is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers, right? But there is in this case a paragraph 88. It is written that the governor exercise his discretion in harmony with the Council of Ministers. Is it necessary? Means decision can be go against the Council of Ministers also because it is his discretionary power. देखो इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि when he will exercise his personal satisfaction, because remember in the constitution term mentioned is satisfaction of the governor. So ideally, to be very frank, whenever the advice of the council of minister and the spirit of the constitution, they both are aligned with each other. Till that time, the governor is bound by the aid and advice of the council of minister. But suppose if the government is going to give any advice which is not in alignment with the spirit of the constitution, then in that circumstances, even if the governor is performing his executive function, should he follow or accept the advice of the council of minister? That is the biggest and the most important thing. और इसमें मैंने एक चीज आप लोग को पहले भी बताई है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर टेक्स ओथ
to defend the constitution, to protect and preserve the constitution and not to protect or preserve the government. तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पे सेटिस्फैक्शन टर्म लिख गया वहां पे whether the president or governor are bound by the advice of the council of minister या वहां पे अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन को यूज करेंगे, वो तो एक सवाल हो गया. तो ये जो अभी आपने शमशेर सिंह का केस देखा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जहां पे द टर्म यूज्ड इज सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली द सेटिस्फैक्शन of the personal satisfaction of the governor or the president. What they have said specifically in the case of these judicial officers, they said that under Article 311, the satisfaction of the governor or the president is not their personal satisfaction, but the satisfaction of the council of minister. तो यहाँ पे एक important सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है satisfaction of the president और governor, और आपने बोल दिया कि ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो फिर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या रह गया? एक सवाल ये बनता है. दूसरा सवाल ये बनता है कि देयर मे बी सर्टेन केसेस वेयर द टर्म सेटिस्फैक्शन और डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट इज नॉट यूज्ड, बट देन टू दे बोथ आर फीलिंग दैट दे शुड एक्सरसाइज देयर ओन डिस्क्रिशन. And maybe specifically the decision of the governor is not aligned with the decision of the council of minister. Then in those circumstances, whether the satisfaction of the governor should prevail, because in the provision it is not mentioned anywhere that he will exercise his personal satisfaction. और इसीलिए मैंने आप लोगों को जब 163 पढ़ाया था, तो 163 में मैंने आपको बताया था सब क्लॉज 2 के बारे में और सब क्लॉज 1 के बारे में, और दोनों में दो चीजें कही गई हैं. पहली चीज ये कही गई है कि वेयर एवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड दैट द प्रेसिडेंट और दैट द गवर्नर इज सेटिस्फाइड और ही विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन. एक चीज तो ये कह गई है. दूसरी चीज ये कही गई है 163 में कि जहां पे डिस्क्रिशन या सेटिस्फैक्शन टर्म नहीं यूज्ड है, वहां पे भी वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकता है. And this cannot be inquired before any court. तो अगर आप इसकी ओवरऑल एनालिसिस करते हो तो ओवरऑल एनालिसिस से आपको एक चीज समझ में आती है, और वो ये समझ में आती है कि ये जो ओपन एंडेड पावर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को दी गई है, स्पेशली मैं गवर्नर की बात करूंगी बिकॉज प्रेसिडेंट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिशन. सो द पर्पस ऑफ गिविंग दिस ओपन एंडेड पावर टू द गवर्नर is to provide an opportunity or an authority or power to protect the Constitution of India in all those circumstances where the action of the state government is not in the alignment of the spirit of the Constitution of India. तो जहां पे सरकार अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा में रह करके कर रही है, in all those places there is no need to exercise their discretion or satisfaction. But remember, whenever they are going to violate the constitution, then in all those circumstances, according to Article 163, he should exercise his discretion. लेकिन इसमें important चीज ये है कि इस चीज को आप clearly लिख नहीं सकते कि where he will exercise, where he will not, where his satisfaction is going to be his personal satisfaction, and where his satisfaction should be based upon the advice of the Council of Ministers. So remember, all those things will depend upon the facts and circumstances of the case. इसके लिए मैं अभी एक दूसरा जो केस अभी डिस्कस करने जा रही हूँ उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, because you just see that how the decision of the governor is changing and simultaneously the judgment of the Supreme Court is changing from one case to another case. अभी हमने शमशेर सिंह के केस में देखा जिसमें उन्होंने बोल दिया कि satisfaction is not their personal satisfaction and it should be based upon the aid and advice of the council of minister. लेकिन MP स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जब केस आता है, then the Supreme Court has given a judgment which is completely in contrast with the previous one. दोनों केसेस के जजमेंट में अंतर क्यों है? जबकि दोनों ही जगह, एक जगह सेटिस्फैक्शन टर्म यूज है और उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम किया है, और दूसरी जगह सेटिस्फैक्शन टर्म यूज है लेकिन वो पर्सनली काम कर रहे हैं
अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन को लेकर के. सो बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड हाउ बोथ द केसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसको समझने के लिए आई थिंक फर्स्टली you should read this case of MP Special Police Establishment, and then subsequently we will discuss that basically what is the difference between both the cases and in what circumstances the president or the governor can exercise their personal satisfaction. हाँ जी बताओ. हम इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जब पर्सनल सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन आता है तो फिर प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फैक्शन का ज्यादा वेटेज होगा ना कि काउंसिल ऑफ मैम, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ एडवाइस उसको प्रोवाइड की, लेट्स से आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को बोला, प्रेसिडेंट सेड कि नहीं ये सही नहीं है, और दोनों अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन में कह रहे हैं नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेइंग नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट इज सेइंग नो, सो प्रेसिडेंट हैज अ मोर वेटेज ना, ही कैन कंप्लीटली इग्नोर इट एंड वो अपने डिस्कशन पे उस टाइम नहीं, उसमें ना प्रेसिडेंट की पावर को उन्होंने कर्टेल कर दिया है. कर्टेल कैसे कर दिया ना, जो उन्होंने उसमें प्रोविजो लगा दिया है कि आफ्टर रिकंसिडरेशन इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गोइंग टू फॉरवर्ड द सेम थिंग देन फॉर द सेकंड टाइम प्रेसिडेंट वुड बी बाउंड. तो प्रेसिडेंट की पावर पे तो रोक लगा दी है उन्होंने, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल नहीं करेंगे वो, तो प्रेसिडेंट ऑटोक्रेटिक हो सकता है. वहां तो समझ में आ रहा है कि अगर आपने प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी, then parliamentary form of the government will be converted into the presidential form of the government. तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब किसी को पावर दी जाती है, either that is the governor or the president or the state or the central government, एक important चीज ये होती है कि the power should come with a sense of responsibility. तो क्या होता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को पावर दी, या जब सरकारों को पावर दी गई, या गवर्नर या प्रेसिडेंट को दी गई, तो ये प्रिज्यूम किया गया कि एवरीबॉडी मस्ट हैव दिस क्या बोलते हैं उसको, दिस अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू एक्सरसाइज देयर पावर फेयरली. तो जब तक फेयर पावर ऑफ एक्सरसाइज होगी तब तक कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं आता. हमेशा कंफ्लिक्ट कब आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए एक लिमिट डिसाइड की है उसको वो ब्रीच करना चाहता है. देन रिमेंबर ओनली द नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अराइव्स. और इसी तरीके से लॉ इवॉल्व करता है. इसलिए मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी कि इन द पर्टिकुलर सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी इज ऑलरेडी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी, आइडियली देयर इज नो नीड ऑफ लॉ. लॉ की आपको जरूरत कब पड़ती है? लॉ की आपको जरूरत तब पड़ती है when the people are not following the parameters of the ethics or morality. तो लॉ का पूरा पर्पस ये होता है कि आपको वो मोरालिटी या एथिक्स की तरफ ढकेले, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि यू शुड नॉट ट्राई टू वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स. इसीलिए मैंने शुरू में जो आपको लेक्चर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोग को लेक्चर दिया था कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लॉ, what is the purpose of legislation and when it came into the existence. इसलिए मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि इंडिया और रोमन लॉ में एक डिफरेंस था. इंडिया में क्या किया गया था, मोरालिटी को सोशलाइज किया गया था, लेकिन रोमन लॉज में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया. दोनों के मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने हर चीज के लिए एक एजेंसी बना रखी है कि वो देखेगी कि आपका मॉरल कंडक्ट सही हो. लेकिन यहाँ पे बचपन से आपकी ग्रूमिंग ऐसे की जाएगी कि आपको बताया जाएगी क्या सही या गलत होता है. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे. तो बट इन बोथ द केसेस द अल्टीमेट पर्पस इज टू पुश पीपुल टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द अदर्स. तो पूरा का पूरा अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना कि लॉ आपको क्या करता है, इसलिए आप लोगों ने शुरू में मेरे लेक्चर को अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि लॉ बेसिकली कैसे इवॉल्व होता है और लॉ का पर्पस क्या होता है. इसलिए जब आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हो ना, तो जूरिस्प्रूडेंस में आप यही चीज पढ़ते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, हाउ लॉ हैज बीन ओरिजिनेटेड, एंड दैट इज नोन इन द फॉर्म ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस और द फिलॉसफी ऑफ लॉ. तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, टाइट वाटर कंपार्टमेंट में आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते कि when they are exercising their constitutional power and when they are exercising their executive power. But the ultimate goal of all sorts of power is to protect the spirit of the Constitution of India.
आज तो मैं आपको एक केस पढ़ा रही हूँ ताकि आप इसको समझ जाओ, कल मैं आपको बताऊंगी कि इसका बेसिक फिलॉसफी क्या है, जो आपको कहीं मिलेगी नहीं लिखी हुई, कि कैसे इसको समझते हैं कि कब कौन से रोल को परफॉर्म करना चाहिए और कब लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। तो कल का जो सेशन होगा, यानी कल जो हमारी क्लास होगी, I believe कि I am going to tell you something which you have never heard earlier, but which is the basis of the interpretation of law. लेकिन आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। तुम्हें जवाब मिल गया शिवम? यस मैम, यस मैम। है ना? तो अभी हम लोग जब ये केस पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कल की क्लास में कि जो दोनों में डिफरेंस आया, वो डिफरेंस क्यों आया है, और इस तरीके के केसेस को डिसाइड करते समय अगर आपके सामने केसेस आते हैं तो आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि इन व्हाट वे द लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक केस देख लेते हैं। द नेम ऑफ द केस इज बहुत ही शानदार जजमेंट है, और आप देखिएगा कि कैसे इंटरप्रिटेशन लॉ का चेंज होता है। अभी हम लोगों ने शमशेर सिंह का केस देखा। द सेकेंड केस इज एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2004 8 SCC 788। ठीक है, अब इस केस का फैक्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं। आपको मालूम है कि जैसे जमीन का एक जो काम होता है, जमीन के काम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग जो लैंड का काम करते हैं उसमें वो ये देखते हैं कि ये ना इस लैंड को जो है अथॉरिटी एक्वायर करने वाली है। तो मान लीजिए कोई खेती की जमीन है, उसको अब अथॉरिटी यानी रूरल से अब वो अर्बन में आ रही है क्योंकि अथॉरिटी उसको एक्वायर कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भी आपने देखा जेवर में आपका एयरपोर्ट आ रहा है, तो जो बड़े बड़े लैंड का बिजनेस करने वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, वहां जाके ऑलरेडी जमीन खरीदना शुरू कर दिया। क्यों जमीन शुरू कर देते हैं? क्योंकि अभी तक वो एग्रीकल्चर लैंड थी। जैसे ही वो अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएगी, उस जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। और कई गुना क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही उस अथॉरिटी उसको एक्वायर करती है ना, उसमें प्रॉपर वो नोटिफाई होकर के उसमें एक अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग या एक प्लानिंग उसकी उस एरिया की कैसे हो, इसको लेकर के वो पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो कई बार कुछ स्कैम्स जैसे पकड़े गए, तो उस स्कैम्स में लैंड का स्कैम क्या था कि सरकारों की तरफ से कुछ लोग इस चीज को मतलब लीक करते थे कि दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लैंड्स आर गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार एक्वायर करती, इसके पहले वो लोग जा करके वहां से किसानों को औने पौने दाम में पैसा दे करके वो जमीन खरीद लेते थे। और फिर जब सरकार उसको एक्वायर करती थी तो वहां का लैंड की वैल्यू बढ़ जाती थी और उसको उस बढ़े हुए दाम पे वो किसी थर्ड पार्टी को बेच देते थे। सो इन अ वे दैट वाज अ काइंड ऑफ लैंड स्कैम। ये जो आपका एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का केस है, इसमें क्या हुआ है कि देयर आर 2 मिनिस्टर्स ऑफ एमपी गवर्नमेंट हु हैव बीन चार्ज्ड फॉर द करप्शन। इनके ऊपर चार्ज क्या लगा? चार्ज ये लगा कि जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसने जिस जमीन को एक्वायर किया था, उस जमीन को इन्होंने इनके ओनर्स को वापस किया था, एंड द टोटल एरिया ऑफ द लैंड वाज 5.5 एकड़। तो 5.5 एकड़ की जमीन जिसको अथॉरिटी ने एक्वायर करी, इसको इन्होंने ओनर्स को वापस किया। तो ऑब्वियसली बीच में कुछ कमीशन खाया होगा, क्योंकि अथॉरिटी के एक्वायर करते ही लैंड की प्रॉपर्टी बढ़ी। और आपने एक चीज और देखी है कि मार्केट रेट और सर्किल रेट में अंतर होता है, और मार्केट रेट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हायर देन द सर्किल रेट। तो इन्होंने जब ओनर्स को ऑफर वापस इन्होंने रिलीज कराई है, तो ओनर्स ने जब इसको आगे बेचा है तो ऑब्वियसली उसका दाम ज्यादा होगा। सो टोटल ओवरऑल these were the charges of corruption against the ministers. अब इसमें क्या हुआ कि इसकी जो इंक्वायरी थी वो लोकायुक्त ने करी, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर दैट लोकायुक्त या जो लोकपाल आपका कॉन्सेप्ट है, द बेसिक पर्पस इज टू क्रिएट एन एडिशनल बॉडी टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ करप्शन इन द गवर्नमेंट मशीनरी। तो जो लोकपाल होते हैं या जो लोकायुक्त होते हैं, इनका काम क्या होता है? वंस दे आर गोइंग टू रिसीव एनी कंप्लेंट्स स्पेशली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, maybe they can be a minister, they may be MP, they may be chief minister, they may be any bureaucrat, they can conduct their independent inquiry. तो जब आप लोकपाल का पूरा सेटअप देखोगे तो there are certain states where
लोकपाल हैव देयर ओन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, लेकिन कई जगहों पे लोकपाल का क्या है, उनके पास खुद की कोई पुलिस नहीं होती। वो क्या करते हैं, जो स्टेट मशीनरी की पुलिस होती है या स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। जहां पे लोकायुक्त की खुद की पुलिस या खुद की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, रिमेंबर इन ऑल दोज स्टेट्स द लोकायुक्ट्स आर मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोकायुक्त ने इन्वेस्टिगेट करवाया और इन्वेस्टिगेट कराने के बाद पता चला कि नहीं, दीज टू मिनिस्टर्स वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन करप्शन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज दे आर द मिनिस्टर्स, सो दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट। आपको भी चीज पता है कि अभी तक ये होता था कि अगर आपको किसी, अब सीआरपीसी में भी आपको मालूम है कि अगर आपको किसी मिनिस्टर को या किसी हाई रैंक के आईएएस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करना है, देन द सैंक्शन ऑफ द स्टेट वुड बी रिक्वायर्ड। सो उसमें होता क्या था कि द स्टेट्स दे डिड नॉट यूज टू गिव परमिशन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द मिनिस्टर और द ब्यूरोक्रेट्स। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड ही देयर वुड बी द नीड ऑफ द सैंक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। उससे नीचे के जितने लोग होंगे उनका प्रोसिक्यूशन अपने आप शुरू हो सकता है, बिकॉज द गवर्नमेंट्स आर बेसिकली गोइंग टू मिसयूज दिस प्रोविजन बिकॉज दे आर नॉट ग्रांटिंग सैंक्शन। यहां पे क्या हुआ, when they have applied for the sanction of prosecution against the minister, तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या जवाब लिख करके भेज दिया कि देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट बोथ द मिनिस्टर्स, सो वी कैन नॉट ऑर्डर फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। तो उनके अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं है, जब उनके अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं है तो हम कैसे उनके प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दे दें। सो वी आर नॉट गोइंग टू ग्रांट द सैंक्शन, एंड विद दिस दे हैव रिकमेंडेड their suggestion to the governor of the state। लेकिन जब वो फाइल गवर्नर के पास गई तो गवर्नर को लगा कि इन मिनिस्टर्स के खिलाफ तो केस बनता है। अब आप देखना दोनों केस के फैक्ट्स में कैसे अंतर आ रहा है। गवर्नर को क्या लगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस इट सीम्स दैट बोथ द मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो गवर्नर ने क्या किया, आउट ऑफ द वे जाके द गवर्नर हैज ग्रांटेड सैंक्शन क्या कर दिया, दैट द प्रोसिक्यूशन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट बोथ द मिनिस्टर्स। अब ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अनप्रेसिडेंटेड चीज क्यों है? अनप्रेसिडेंटेड चीज ये है कि हियर द गवर्नर इज नॉट अबाइडिंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ही हैज अप्लाइड हिज ओन डिस्क्रिशन एंड ग्रांटेड सैंक्शन टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जब ये सैंक्शन मिल गया तो ये दोनों मिनिस्टर क्या किए, ये हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने जो पहली प्ली फाइल करी, पहली प्ली जो मेंशन करी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने क्या करी कि द गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज एडवाइज्ड हिम दैट देयर इज नो प्रूफ against both these ministers, so the sanction cannot be granted. How the sanction was granted by the governor to initiate prosecution against both the minister? यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे इन हिज डिस्क्रिशन टर्म जो यूज होता है आर्टिकल 163 में, उसके अकॉर्डिंग द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर शुड नॉट बी हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, but the governor should exercise his discretion on the advice of the council of minister। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन की परमिशन गवर्नर ने दी है वो परमिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि जो एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी जो लोकायुक्त पुलिस है उन्होंने अपील फाइल करी, लेटर पेटेंट अपील फाइल करी, वहां से भी डिसमिस हो गई। किस बेसिस पर डिसमिस हो गई? ऑन द सेम ग्राउंड that here again the governor is bound by the advice of the council of ministers। That's why in this case you have seen that the appellant is the MP special police establishment, क्योंकि हारे हैं हाई कोर्ट से इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। Now the matter has been brought before the 5 judges bench of the Supreme Court, and what is the main issue which has to be decided by the judges in this case? The main issue is here the discretion which has been exercised by the governor, that is constitutionally valid,
or the governor is bound by the aid and advice of the council of minister. अब इसमें एक चीज आप देखना, जजमेंट में जाने से पहले क्या डिस्कस किया गया ये सब आप छोड़ दो. एज अ लेमैन आप इसको ये सोचो कि अगर गवर्नर को लग रहा है कि मिनिस्टर करप्ट है, मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन नहीं दे रहा है, then in that circumstances if the governor is sitting silently, then whether the governor can say he is in the position to defend, preserve and protect the constitution, because the to preserve, protect and defend the constitution means the constitutional spirit should be protected against any kind of malified misuse of power. और अगर करप्ट लोग सिर्फ इसलिए बच जाएंगे क्योंकि मिनिस्टर के सैंक्शन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो परमिशन नहीं दे रही प्रोसिक्यूशन के लिए, then in that circumstances it is very much clear that the law is going to protect those who are powerful. So might is right that basically that idea is going to be prevailed. तो अब जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जब हम लोग कॉन्साइंस की बात करते हैं, या जिसे आपने देखा रॉस्को पाउंड कहता है अंतःचेतना का सिद्धांत, ठीक है ना, तो ये जो आपका जो कॉन्साइंस की थ्योरी होती है ये कैसे डिसीजन देने में या कंक्लूड करने में आपको हेल्प करती है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग लीगल पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे. व्हेन द मैटर वाज ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एक जो आपके वकील है इसमें, दैट इज सोली सोराब जी, हु इज अ ग्रेट जूरिस्ट एज वेल एज ही वाज अ ग्रेट जूरिस्ट एज वेल एज अ ग्रेट एडवोकेट, एंड ही हैज रेज्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. पहला उसमें उन्होंने जो इशू उठाया कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन at some places the term satisfaction or discretion of the governor is used, but क्या वहां पे जो लिखा हुआ है कि satisfaction of the governor besides those places in any other case whether the governor can exercise his personal satisfaction or discretion or not. और दूसरी चीज ये हो गई कि जहां पे satisfaction of the governor टर्म लिख दिया गया, क्या वहां पे मतलब ये हो गया कि एवरी टाइम एज पर द जजमेंट ऑफ द शमशेर सिंह ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ही कैन एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन आल्सो. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप इंटरप्रिटेशन में जाते हो तो सबसे पहले आपको लॉ को पढ़ना होता है, और लॉ को पढ़ करके आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर द लॉ इज क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट. तो जब आप लॉ को पढ़ते हो, so here in this case 163 becomes very very relevant. Again I am going to read it so that you could understand that what basically I am trying to say. 163 जब आप पढ़ते हो इसका सब क्लॉज 1, तो साफ साफ कहता है कि there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his function, except, ये except से important है, insofar as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. तो जहां जहां पे डिस्क्रिशन टर्म यूज है वहां पे वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकता है, उसके अलावा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा. तो एक चीज यहाँ पे ये भी हो गई कि सेटिस्फैक्शन का ये भी मतलब हो सकता है कि जब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मानने लायक लगेगी वो तभी मानेगा, अगर नहीं लगेगी देन ही may exercise his discretion also at all those places where the term satisfaction or discretion is used. लेकिन इसका सेकेंड क्लॉज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कहता है, if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final and the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे रिक्वायर्ड है
उसके अलावा भी अगर वो कहीं अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करता है तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता या इसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती कि उसने अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे एक्सरसाइज किया है। तो ये जो आपको 163(1) और 163(2) है, इसको पढ़ करके एक चीज क्लियर लगती है कि दे एट सम प्लेसेस according to the provisions of the constitution he can exercise his satisfaction, he can exercise his discretion, but there may be some other cases also where the term discretion or satisfaction of the governor has not been used, but there too he can exercise his discretion. लेकिन वो कौन सी जगहें होंगी इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली साइलेंट। तो अगर साइलेंट है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इट विल depend upon the facts of the case. So what Mr. Sorabji is saying, यही चीज सोराबजी बोल रहे हैं जो मैंने अभी बोली, there are certain provisions within the constitution which expressly provides the exercise of discretionary power by the governor under the constitution, but despite of those provisions under article 163 subclause 2, if it is mentioned that governor can act in his discretion, it's mean except those places where it is expressly mentioned there are certain matters in which the governor can exercise his discretionary power. तो अब इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि कुछ और ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पे कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करेगा। अब इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है, नॉर्मल रूल ऑब्वियसली क्या होता है कि द गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पे गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने एक देखेगा कि इसमें सुप्रीम सोराब जी ने एक केस मेंशन किया है, और वो जब आप आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि रूल अगेंस्ट बायस इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैन बी अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ बायस। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ बायस का मतलब क्या होता है कि किसी सरकार से कहो कि तुम्हारा मंत्री करप्ट है, तो क्या सरकार कभी मानती है कि हमारा मंत्री करप्ट है? क्योंकि अगर मंत्री करप्ट है तो इसका मतलब है सरकार करप्ट है। So in most of the cases what we find that the governments are trying to protect and defend their corrupt ministers, और ऐसे हमने 50 केस देखे हैं। अभी भी हमने महाराष्ट्र में केस देखा, वहां के गृह मंत्री का नाम जिस तरीके से आया कि वहां पे गृह मंत्री वाज वर्किंग इन कोल्यूजन विद द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ द पुलिस, जो अभी सचिन वाजे का केस हुआ है, वहां पे आपने देखा कि अभी ईडी वगैरह उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन अ गवर्नमेंट इफ द मिनिस्टर इज करप्ट देन ऑब्वियसली टू सेव द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल most of the time will never try to grant sanction for the initiation of a prosecution against him. तो क्या यहाँ पे रूल अगेंस्ट बायस लगेगा क्या? और अगर रूल अगेंस्ट बायस लगता है then in that circumstances it means it is in the clear cut violation of the natural law of justice. And clear cut violation का मतलब क्या हुआ कि जहां पे रूल अगेंस्ट बायस लग गया वहां पे जस्टिस हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि those who have any interest in the subject matter or in the case they should not be the part of the decision making, that is very much clear. तो यहाँ पे इन्होंने एक केस मेंशन किया है and the case is basically which has been pointed out by Mr. Sorabji, that is the case of R.S. Nayak. R.S. Nayak का क्या केस है? एंड अंतुले का केस है। मिस्टर अंतुले के अगेंस्ट में R.S. नायक जो है वो एक एमएलए हैं, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एंतुले, उनके अगेंस्ट में करप्शन को लेकर के शिकायत करी। नाउ हियर अगेन इन दिस केस, unless and until the council of minister is going to grant his sanction for the initiation of the prosecution against the sitting chief minister, the prosecution cannot be initiated. लेकिन यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन किसके अगेंस्ट में चाहिए? चीफ मिनिस्टर के। और हम सब ने अभी तक क्या देखा? द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो क्या जिस चीफ मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट क्रिएट करी हुई है वो मंत्री क्या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में जा करके प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन देंगे क्या?
दैट वाज $1 million क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर अंतुले के केस में एक चीज डिसाइड करी, उन्होंने बोला कि इन द केस ऑफ the sanction against the chief minister for the prosecution, the decision of the governor should be his personal satisfaction. But in the case of rest of the ministers, except the chief minister, the satisfaction of the governor should be based upon the recommendation of the council of minister. तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अंतुले का जो केस है उसमें the Supreme Court tried to make a distinction between the chief minister and the rest of the ministers of the council of minister on this basis कि sanction अगर CM के against में है then the governor can exercise his personal discretion. लेकिन अगर sanction की requirement किसी और minister के against में है then in that circumstances the governor should work on the aid and advice of the council of minister. But one thing is very much clear on the basis of this case of Antule, that the doctrine of biasness is equally applicable in the case of ministry also. और उन्होंने बोला कि biasness की थ्योरी इन्होंने क्यों लगाई है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लगाई है क्योंकि मिनिस्टर्स का सीएम में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो मिनिस्टर कभी भी सीएम के अगेंस्ट में सैंक्शन नहीं देंगे, इसीलिए बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बायस्ड इज वेरी मच हाई, द गवर्नर शुड नॉट वेट और शुड नॉट रिलाई अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ही मे आस्क फॉर द रिकमेंडेशन, बट अदरवाइज इफ ही इज नॉट एग्री with the recommendation of the council of minister regarding granting permission of prosecution against the chief minister, then in that circumstances the governor can exercise his own discretion. But remember, here in this case the issue is not related with the chief minister, but the issue is related with the sanction of prosecution against ministers. तो कल हम लोग इस केस को पूरा करेंगे और जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन की थ्योरी बताई थी उसको भी कल हम लोग देखेंगे. जो बार बार आपके सवाल आते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हेन द गवर्नर शुड प्ले द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड व्हेन द गवर्नर शुड प्ले द रोल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो अभी तक हम लोगों ने अंतुले तक का केस डिस्कस किया है. कल हम लोग इस केस को खत्म करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है. सो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई थिंक यू शुड वेट टिल टुमारो, बट इफ यू वांट टू आस्क you may ask. I am ready to answer your question. कोई है सवाल आप लोग का? हाँ अभिषेक बताओ. Ma'am, in Article 163, Clause 2, when it is said that the decision of the governor, discretionary decision of the governor should not be called in question, then ma'am, it may be a case, ma'am, where the governor can act in a autocratic manner, as his discretion cannot be questioned in the court. देखो ये इसमें लिखा है पर ऐसा होता नहीं है. इसमें लिखी ये चीजें क्यों जाती है ना, क्योंकि अगर आप बार बार ड्रैग करते हो प्रेसिडेंट या गवर्नर को ना कोर्ट में, क्यों इम्यूनिटी दी जाती है इन लोगों को? टू अवॉइड अननेसेसरली imposing any kind of pressure against the governor and the president. वो अपनी पावर को फेयरली एक्सरसाइज करें, उसके लिए सारे प्रोटेक्शंस दिए गए हैं. मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई थी, कहीं कुछ भी लिखा हो जहां एक लॉ अगर नहीं भी है तो भी मतलब अनरिटन लॉ जहां पे होता है, मतलब रिटन लॉ जहां पे नहीं भी है वहां पे भी एक लॉ हमेशा चलता है और वो होता है लॉ ऑफ द नेचर और लॉ ऑफ द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस. और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि योर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर पोजीशन, और वो पोजीशन का जो पर्पस है ना वो उसी के अकॉर्डिंग आपके पावर्स का इंटरप्रिटेशन किया जाता है. तो अगर इन्होंने आप कह भी दिया है कि उसके डिस्क्रिप्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी चैलेंज, but it doesn't mean that if he is going to violate the spirit of the constitution then you should sit silently. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी जरूर गई कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हो. और अभी आपने इस एमपी स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट के केस में देखा कि इसी चीज को चैलेंज किया गया कि गवर्नर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज, डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज किया और आपने उसको चैलेंज किया. तो हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल द प्रोविजंस एंड ऑल द पावर इज टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
क्योंकि स्पिरिट के से कॉन्सोनेंस में अगर आपका डिसीजन नहीं है तो आप किसी भी तरीके की इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकते हो. एंड बिकॉज being the protector of the constitution of India, the Supreme Court has unlimited power to exercise against such kind of decisions which are not in the alliance with the spirit of the constitution of India. तो याद रखना, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि अगर उसने अपनी डिस्क्रिप्शन का मिसयूज किया, then in that circumstances definitely it can be challenged. You got your answer? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो अब कल मिलते हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया. आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब मैं कल दूंगी. तो हमेशा याद रखना, जो भी पावर दी गई है, किसी को भी दी गई है, द अल्टीमेट पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन. सो विद दिस इट्स ऑल फॉर टुडे. सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एंड वी विल फिनिश दिस केस. ठीक.